Hello students, today we shall start our poem, Our Casuarina Tree, that is fifth one in our book. This poem is written by Toru Dutt. She was born on March 4th, 1856. She was the youngest of three children of Hindu-Bengali couple. She was Bengali. Her brother Abju died at the age of 14. Aru was her elder sister. She was 18 months senior to Toru. Toru and Aru, both sisters, traveled to France and Italy and then to England. Later, they were converted into Christianity. Toru's education was done in France and England, and she came back to India in the early 1870s. She became famous because of her literary work, but she died prematurely at the age of 21. Yes, she she was a very famous poetess. Her famous work are A Sheaf Gleaned in French Fields and Ancient Ballads and Legends of Hindustan. Her famous lyrics are Sita, Lakshman and Our Casuarina Tree. In this poem, Our Casuarina Tree, we get an objective description of Casuarina Tree. Okay, here the poetess gives records of her impressions of the tree at different times of the day. She has a very good memories regarding tree and her brother and sister. Childhood memories are always nostalgic for all of us. We all love to cherish them forever. Our memories, past memories. The poem is a beautiful symbolic poem. The tree stands for a symbolic representation of Toru's past memories. A creeper, now we start. A creeper climbs upward, embracing the trunk of the casuarina tree. See here, your first stanza, like a huge python winding round and round the rugged trunk up to while men repose. Okay, we shall start. So, the tree stands for a symbolic representation of Toru's past memories. Here, a creeper climbs upwards, embracing the trunk of the casuarina tree, winding round and round, leaving very deep scars, means signs of wound. Means a climber is surviving over that casuarina tree. The Toru Datta says that in such embraces means hugs, 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 no other tree could be able to survive. But in a very brave manner, means gallantly, means bravely, this giant, here giant means casuarina tree, wears the scarf means it has maintained its dignity, it has kept its dignity. There are many scars by climbers on the tree. If there would be any other tree, it couldn't have survived, but this tree survived bravely in such circumstance. On this tree, one can see bunches of red colored flowers hung all over the branches. As you know, where there is a big tree, birds and creatures nest there. So, here also on this tree, one could see birds and bees, etc. And at night, often the garden resounds with a sweet song sung by the night creatures, which is unending. While at this time, men repose. Men means human being take rest at night. But on that casuarina tree, all the night creatures sing a song.
means they make noises, they make sounds. The same here. Yes, now in Hindi, this stanza. यहाँ बेटा कैजुरिना ट्री जो है, तोरू दत्त जो पोएटेस हैं, कवित्री हैं, उनकी पास्ट मेमोरीज को, उनकी मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है। और वैसे भी हमारे बचपन की जो यादें रहती हैं वो हमेशा हमें पास्ट में लेकर ही जाती हैं, नॉस्टैल्जिक होती हैं। हम हमेशा अपने बचपन की यादों को, बचपन को याद करते ही रहते हैं। ये पोएम एक बहुत ही सुंदर सिंबॉलिक पोएम है, हमारे मेमोरीज को रिप्रेजेंट करती हुई। यहाँ पर ट्री को भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया है तोरू की मेमोरीज का, पास्ट मेमोरीज का। इसमें वो ट्री को कैसे डिस्क्राइब किया गया है बेटा, एक ये बड़ा सा विशालकाय बहुत बड़ा सा ट्री है, ये जो कैजुरिना ट्री है काफ़ी बड़ा है। और आपने देखा होगा कि कई पेड़ जो रहते हैं उनके ट्रंक काफ़ी चिकने से होते हैं, स्मूथ से होते हैं, लेकिन जो ये कैजुरिना ट्री है इसका जो तना है, ट्रंक है, वो रजिड ट्रंक जिसको बोला गया है, उसमें बहुत स्कार्स, डीप स्कार्स, यानी इसमें ऐसे घाव जैसे निशान दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कई पेड़ों में ऐसे निशान से होते हैं, कट लगे हुए निशान, तो वैसे निशान काफ़ी पुराना ट्री है। और उसके ऊपर क्लाइंबर जो है पूरी तरह से उस पर सपोर्ट लेती हुई ऊपर तक पहुंच गई है, पीक ऑफ द ट्री तक, टॉप ऑफ द ट्री तक। अभी दूसरा कोई ट्री होता, दूसरा कोई वृक्ष होता तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ ये ट्री बहुत ही ब्रेवली अपने आप को सर्वाइव किए हुए है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए हुए। यहाँ उस ट्री की डिग्निटी को बताया गया है। यहाँ पोएटिस बोलती हैं कि जैसा हम जानते हैं कि जहाँ भी पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पर तो पक्षियों का बसेरा होता ही है, और भी अदर क्रिएचर्स भी होते हैं। वैसे ही इस ट्री के ऊपर, इस ट्री पर काफ़ी क्रिएचर्स नाइट में भी रहते थे, दिन में भी बीज, बर्ड्स रहा करते थे, रात में भी क्रिएचर्स से ये ट्री गुंजायमान होता रहता था। तोरू दत्त के जो गार्डन में ये ट्री था उनके घर के पास, तो वहाँ पर काफ़ी नाइट क्रिएचर्स की आवाज़ें आती रहती थी जो रात भर चलती थी, अनएंडिंग होती थी। जबकि ऐसे समय में इंसान सोया हुआ होता है, लेकिन रात के समय में नाइट क्रिएचर्स अपनी आवाज़ से पूरे वातावरण को गुंजायमान करते रहते हैं। अब बेटा देखिए ऑन पेज नंबर 31, व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट से लेकर स्नो एंड मार्च तक सेकेंड स्टेंजा। हियर द पोएटेस सेज दैट व्हेन इन विंटर, when she opens her window in the morning, what she sees? She sees a grey baboon. Baboon means a short-tailed monkey sitting alone on the top of the tree like a statue and watching the sunrise. While on the lower boughs means branches, his tiny babies means puny offsprings leaping about and playing. She can hear the sweet voice of the cuckoo welcoming the day, sometimes very far and sometimes very near. She can see the sleepy cows making their way, means walking to their pastures. Pastures means grasslands. And in the shadow thrown by that hoar means ancient tree, very old tree, she can see very beautiful and huge water lilies grown and look like snow. Yes बेटा, अब ये स्टेंजा हिंदी में, यहाँ पर कवित्री कहती हैं, पोएटेस कहती हैं कि जब कभी भी वो ठंड के सीज़न में अपने घर की खिड़की खोलती है सुबह के समय में, तो वो क्या देखती है कि एक भूरे रंग का वानर बैठा हुआ है उनके ट्री की सबसे ऊंची चोटी पर, सबसे ऊंची डाल पर, और उसके नीचे वाली जो ब्रांचेस हैं वहाँ पर उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उस बंदर के, वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहाँ वो पोएटेस वहाँ स्वीट सॉन्ग कुकू की भी सुन सकती है। स्वीट सॉन्ग कुकू का ऐसा लगता है जैसे दिन का स्वागत कर रहा हो, कभी ऐसा लगता है उसकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है और कभी काफ़ी पास से आ रही है। वो ये भी देख सकती है कि सुबह नींद से उठी हुई उनिंदी सी गाय
वो भी अपने चरागाह की ओर जा रही हैं। वहाँ से उसको खिड़की से ये सब सीन दिखाई देता है। जब वो शैडो में, उसके ट्री की शैडो में नज़र डालती है, तो वहाँ उस पुराने ट्री की शैडो में नज़र डालती है, तो वहाँ पर उसको बहुत सुंदर सुंदर वाटर लिलीज दिखाई देती हैं। और उनको देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बर्फ़ की चादर बिछ गई हो, यानी वो वाइट वाटर लिलीज बर्फ़ की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है पूरा किसी ने जैसे बर्फ़ वहाँ पर डाल दिया हो, इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। Yes, now next stanza from but not because of its magnificence up to land may reach. In this third stanza, here the poetess says that she doesn't love that tree for the reason that it is excellent, it is magnificent, but she reminds her brother and sister with whom she played under that tree, and so that tree is dear to her. Okay, though many years passed, but their memories are still in her mind because of that tree, and for their sake the tree will always be dear to her. Dear, they will arise in her memory till the tears blind her eyes. She says that she can hear dirge like murmur, means mourning sound, and she says that she feels that tree is lamenting, means tree is showing mourn in her grief. The casuarina tree is animated here, and she feels as the tree is mourning the death of Aru and Abju. यस यस बेटा, अब इसका हिंदी में थर्ड स्टेंजा, उसका मीनिंग, यहाँ पोएटेस ये कहती है कि उसको उस ट्री से इसीलिए प्यार नहीं है, वो ट्रीज उसको इतना प्यारा इसलिए नहीं है कि वो बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत मैग्निफिसेंट है, बल्कि वो इसलिए प्यारा है कि उससे उसके भाई बहनों की यादें जुड़ी हुई हैं जिनके साथ वो बचपन में खेला करती थी। वो ट्री को देखती है तो उसे अपने भाई बहनों की और अपने बचपन की याद आने लगती है, और वो यादें अभी भी उसके दिल दिमाग में जीवित हैं। ये 21 साल की है और इसका भाई 14 इयर्स की एज में गुजर चुका था, उसकी सिस्टर भी गुजर चुकी थी, लेकिन अब उनको वो सब चीज़ें अपने पास्ट की, अपने बचपन की पूरी याद आती हैं जब जब वो ट्री को देखती हैं, और वो उदास हो जाती हैं जब भी उनको उनकी याद आती है। और उस समय जब वो पेड़ ऐसा हिलता है, डज लाइक मर्मर करता है, तो मतलब हवा चलती होगी और वो जब हिलता है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो पेड़ भी उनके साथ उनके दुख में शामिल है। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे अरु अबजू की मृत्यु पर वो पेड़ भी अपना दुख जता रहा है। मेरा नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 4, अननोन yet well known up to loved native climb. Here the poetess says that it is not natural to see that a tree is mourning or weeping. It is not natural. No one has ever seen it crying or wailing, but if one has faith in it, one can feel it to be real. Here Toru Datta has brought out the theme of nature as something that shares feeling with humans, that lightens the burden on the heart. She continues with a description of how strong the image of the tree is even when in lands far away. Even in France and Italy, where the poetess studied, she can hear the trees lamenting. In her inner vision, she sees its tree's form, as it was in her most glorious period. Even when she is in her native clime, means native place, she sees it, means that tree. बेटा इसका हिंदी का मीनिंग ये स्टेंजा का कि यहाँ पोएटेस कहती हैं कि ये नेचुरल नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। यदि कोई ट्री मॉर्निंग करे, शोक व्यक्त करे,
हमने कभी किसी ने भी कोई पेड़ को वृक्ष को ऐसे मॉर्निंग करते हुए, शोक जताते हुए या शोक प्रकट करते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन बेटा इंसान को यदि किसी चीज़ में बिलीव है तो वो चीज़ रियल भी हो सकती है। जैसे हम लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है भगवानों में, हम लोग भी मानते हैं कि हाँ हमारी आस्था है, हमको भगवान सहायता करते हैं। तो कभी हमारी जब सहायता होती है, हम जब उस मुसीबत से उबर कर निकलते हैं तो हमें भी महसूस होता है कि हाँ हमारी भगवान ने सहायता की है। हम अपना अपना बिलीफ होता है। ऐसा ही बिलीफ था पोएटस को, तोरू दत्त को। तो उनको लगता था कि जैसे वो ट्री लेमेंटिंग कर रहा है, जबकि ऐसा नेचुरल चीज़ नहीं, ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है ऐसा माना जाना। लेकिन यदि हमारी आस्था है तो वो चीज़ हो सकती है। और तोरू दत्त के साथ भी यही हुआ। और उनको ऐसा लगने लगा कि जैसे उस वृक्ष के लेमेंटिंग करने से, शोक व्यक्त करने से उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। हम भी जब दुख में होते हैं और कोई जब हमारे साथ अपने हमारे दुख में हम साझी होता है, शरीक होता है, तो हमको भी वो दुख अपना थोड़ा हल्का लगने लगता है। ऐसे ही तोरू दत्त के साथ हुआ है। यहाँ पर उन्होंने ट्री की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज देने की, बताने की कोशिश की है। तब भी जब वो बहुत दूर रहा करती थी, फॉरेन में थी, फ्रांस इटली में रहने पर भी जहाँ उन्होंने पढ़ाई की, वहाँ भी उनको वो ट्रीज़ की लेमेंटिंग अपने भाई बहनों के प्रति सुनाई देती है, समझ में आती है। और जब वो अपने नेटिव लैंड में रहती है तब तो ऐसा होता ही है। अब बेटा ये देखेंगे नेक्स्ट 5th स्टेंजा। Yes, from therefore I fain would consecrate up to oblivion's curse. Here, the poet wishes to compose a sacred verse, holy verse. Sacred means holy verse, for the honor of the tree, for the sake of those who are now dead, means her brother and sister, and she looks ahead to her own death, hoping the long life of the tree. She wants that the tree to be immortal like those trees in Borrowdale. Borrowdale means a valley in south of England where there are trees and considered to be immortal. She wishes that her love may protect the tree against the oblivion's curse, means the curse of forgetfulness, and that the tree be remembered out of love. She wishes for that tree. Yes, in Hindi, यहाँ पोएटिस ऐसी इच्छा करती है कि उस ट्री के लिए जो उनको बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसके लिए कुछ अच्छा सा वर्स लिखे, अच्छी सी पोयम लिखे, जो उसके सम्मान में लिखना चाहती है, जो उसको अमर बना दे। वो चाहती है कि वो जो ट्री है वो इमॉर्टल हो जाए, कभी भी ख़त्म न हो। बेटा इंग्लैंड में, वो वहाँ के साउथ ऑफ इंग्लैंड की एक वैली में जिसका नाम है बोरोडेल, वहाँ पे कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जो माने जाते हैं कि वो कभी नहीं ख़त्म होते, सदाबहार माने जाते हैं, एवरग्रीन, कभी इमॉर्टल माने जाते हैं। तो वैसा ही चाहती है कि इसका ये जो कैजुरिना ट्री है वैसे इमॉर्टल हो जाए, उसको कोई भी ऑब्लिवियंस कर्स, यानी ऑब्लिवियंस कर्स मतलब जो ये मृत्यु है, डर है, ये सब चीज़ों से उसको कोई प्रभाव ना पड़े और वो अमर ही रहे। ऐसा वो चाहती है। वो भले ही मौत उसको आ जाए, वो भले ही मर जाए, लेकिन उसका ट्री इतना प्यारा है उसे कि वो चाहती है कि वो हमेशा अमर रहे और यहाँ पर उसको प्यार से याद रखा जाए, उस ट्री को कोई कभी भूल ना पाए, इतनी उसकी विशिंग है। तो बेटा यहाँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी, जो 5 स्टेंजास की हैं। इसमें बस कैजुरिना ट्री के ही बारे में कहा गया है और कैजुरिना ट्री किस तरह से पोएटिस के दुख में शरीक होता है, उन्हें ऐसा लगता है। उनके भाई बहन के गुजरने के बाद उनको ऐसा लगता है जैसे वो ट्री उनके साथ है और वो ट्री के अमर होने के लिए प्रे करती है, विश मांगती है और उस ट्री के ऑनर में कुछ ऐसा बहुत ही होली, बहुत ही सैक्रेड पोयम लिखना चाहती है। तो ये हमारी पोयम थी कैजुरिना ट्री। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। यस, तो अब फिर नेक्स्ट हमारे लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।